اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آتی ہے۔ آخر عبادت میں وہ محبت اور سکون کیسے پیدا ہو؟ اس کا سفر نیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ چھوٹی شروعات کریں، روز صرف 5 منٹ قرآن پڑھیں یا 2 نفل ادا کریں۔ مستقل مزاجی سے محبت بڑھتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ گناہ دل پر بوجھ ڈالتے ہیں جس سے عبادت مشکل لگتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ کبھی اللہ کی نعمتوں پر غور کیا؟ یہ آنکھیں، یہ سانسیں، یہ سب کچھ اس نے بن مانگے دیا۔ جب شکر پیدا ہوگا تو سجدے خود بخود طویل ہو جائیں گے۔ موت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی عادتیں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادت سال بھر آپ کا ساتھ دے گی۔ یاد رکھیں، عبادت بوجھ نہیں، یہ روح کا سکون ہے۔ یہ اپنے رب سے خوبصورت تعلق ہے۔ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا ہم دن میں 5 وقت اسے یاد نہیں کر سکتے؟ آج سے ہی ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت میں لذت اور خلوص عطا فرمائے۔ سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ گناہ دل پر بوجھ ڈالتے ہیں جس سے عبادت مشکل لگتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ کبھی اللہ کی نعمتوں پر غور کیا؟ یہ آنکھیں، یہ سانسیں، یہ سب کچھ اس نے بن مانگے دیا۔ جب شکر پیدا ہوگا تو سجدے خود بخود طویل ہو جائیں گے۔ موت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی عادتیں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادت سال طویل ہو جائیں گے۔ موت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی عادتیں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادت سال بھر آپ کا ساتھ دے گی۔ یاد رکھیں، عبادت بوجھ نہیں، یہ روح کا سکون ہے۔ یہ اپنے رب سے خوبصورت تعلق ہے۔ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا ہم دن میں 5 وقت اسے یاد نہیں کر سکتے؟ آج سے ہی ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آتی ہے۔ آخر عبادت میں وہ محبت اور سکون کیسے پیدا ہو؟ اس کا سفر نیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ چھوٹی شروعات کریں، روز صرف 5 منٹ قرآن پڑھیں یا 2 نفل ادا کریں۔ مستقل مزاجی سے محبت بڑھتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ گناہ دل پر بوجھ ڈالتے ہیں جس سے عبادت مشکل لگتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ کبھی اللہ کی نعمتوں پر غور کیا؟ یہ آنکھیں، یہ سانسیں، یہ سب کچھ اس نے بن مانگے دیا۔ جب شکر پیدا ہوگا تو سجدے خود بخود طویل ہو جائیں گے۔ موت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی عادتیں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادت سال بھر آپ کا ساتھ دے گی۔ یاد رکھیں، عبادت بوجھ نہیں، یہ روح کا سکون ہے۔ یہ اپنے رب سے خوبصورت تعلق ہے۔ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا ہم دن میں 5 وقت اسے یاد نہیں کر سکتے؟ آج سے ہی ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت میں لذت اور خلوص عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے سحری میں اٹھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ الارم بجتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بس اسے بند کر کے سو جائیں، اور کبھی کبھی ہم ایسا کر بھی لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلو ایک دن سحری چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ لیکن سچ پوچھیں تو سحری چھوڑنا روزے کے دوران آپ کی انرجی اور صحت کے لیے سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ سحری آپ کے دن کا فیول ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جو آپ کو فجر سے مغرب تک توانا رکھتا ہے۔ اسے چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم کو دن بھر چلانے کے لیے ضروری طاقت ہی نہیں دے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سحری میں ایسا کیا کھایا جائے جو آپ کو دن بھر فریش اور ایکٹیو رکھے؟ اس کا جواب 2 لفظوں میں ہے: پروٹین اور فائبر۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک پاور ہاؤس بناتی ہیں۔ پروٹین آپ کے مسلز کو طاقت دیتا ہے اور آپ کو بھوک کا احساس جلدی نہیں ہونے دیتا۔ فائبر آپ کے ہاضمے کو آہستہ کرتا ہے، جس سے انرجی آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے۔ اس طرح آپ کو دن میں کمزوری یا چڑچڑاپن محسوس نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پروٹین اور فائبر ہمیں کن چیزوں سے مل سکتا ہے۔
प्रोटीन के लिए अंडे एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप उबला हुआ अंडा खा सकते हैं या ऑमलेट बना सकते हैं। इसके अलावा दही, खास तौर पर ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जरिया है। दालें और चने भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आप रात को थोड़े से चने भिगोकर रख सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं। फाइबर के लिए जौ का दलिया यानी ओट से बेहतर कुछ नहीं, यह आपको देर तक फुल रखता है। इसके अलावा गंदम की रोटी या ब्राउन ब्रेड भी एक अच्छा इंतखाब है। फलों में केला, सेब और बेरीज शामिल करें और सब्जियों को अपने ऑमलेट या सालन में जरूर इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी सहरी को बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत बख्श बना सकती हैं। खाने के साथ साथ पानी का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सहरी के वक्त एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। इससे आपको सिर्फ कुछ देर के लिए पेट भरा हुआ महसूस होता है और फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। सही तरीका यह है कि आप इफ्तार से लेकर सहरी तक थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें। इस तरह आपका जिस्म हाइड्रेटेड रहेगा। सहरी में भी 1 से 2 ग्लास पानी काफ़ी है। कोशिश करें कि चाय, कॉफ़ी और मीठे मशरूबात से परहेज करें, क्योंकि ये आपके जिस्म से पानी कम करते हैं और प्यास बढ़ाते हैं। अब जरा इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं जिनसे आपको सहरी में परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तली हुई चीज़ें जैसे पराठे, समोसे या पकोड़े। ये खाने में तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ये आपको दिन भर सुस्त और प्यासा महसूस करवाते हैं। इनमें ग़िज़ाइयत कम और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाएँ। अचार, पापड़ और प्रोसेस फूड्स में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके जिस्म में प्यास की शिद्दत को बढ़ा देती है। इसलिए कोशिश करें कि सहरी में सादा और हल्का फुल्का खाना खाएं। अगर आपके पास सुबह ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो मेरे पास आपके लिए एक 5 मिनट की ज़बरदस्त सहरी आइडिया है। एक स्मूदी बनाएं। ब्लेंडर में 1 कप दही, 1 केला, 2 से 3 खजूरें और मुट्ठी भर बादाम या अखरोट डालें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें और आपकी मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर सहरी तैयार है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और अच्छी कैलोरी सब कुछ मौजूद है, जो आपको दिन भर चुस्त रखेगा। तो इस रमज़ान सहरी को छोड़ने के बजाय इससे एक सेहतमंद आदत बनाएं। याद रखें, सही सहरी ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत रखती है, बल्कि आपको इबादत पर तवज्जो मरकूज करने में भी मदद देती है। प्रूवियों के साथ अपनी आवाज़ को पहचानें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी इन लोगों में से हैं जिनके लिए सहरी में उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है? अलार्म बजता है और दिल करता है कि बस इसे बंद करके सो जाएं, और कभी कभी हम ऐसा कर भी लेते हैं, ये सोच करके चलो एक दिन सहरी छोड़ने से क्या होगा। लेकिन सच पूछें तो सहरी छोड़ना रोजे के दौरान आपकी एनर्जी और सेहत के लिए सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। सहरी आपके दिन का फ्यूल है। ये वो खाना है जो आपको फजर से मगरिब तक तवाना रखता है। इसे छोड़ने का मतलब है कि आप अपने जिस्म को दिन भर चलाने के लिए ज़रूरी ताकत ही नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि सहरी में ऐसा क्या खाया जाए जो आपको दिन भर फ्रेश और एक्टिव रखे? इसका जवाब 2 लफ्ज़ों में है, प्रोटीन और फाइबर। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक पावर हाउस बनाती हैं। प्रोटीन आपके मसल्स को ताकत देता है और आपको भूख का एहसास जल्दी नहीं होने देता। फाइबर आपके हाजमे को आहिस्ता करता है, जिससे एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है और आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। इस तरह आपको दिन में कमजोरी या चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता। अब बात करते हैं कि प्रोटीन और फाइबर हमें किन चीज़ों से मिल सकता है। प्रोटीन के लिए अंडे एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप उबला हुआ अंडा खा सकते हैं या ऑमलेट बना सकते हैं। इसके अलावा दही, खास तौर पर ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जरिया है। दालें और चने भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आप रात को थोड़े से चने भिगोकर रख सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं। फाइबर के लिए जौ का दलिया यानी ओट से बेहतर कुछ नहीं, यह आपको देर तक फुल रखता है। इसके अलावा गंदम की रोटी या ब्राउन ब्रेड भी एक अच्छा इंतखाब है। फलों में केला, सेब और बेरीज शामिल करें और सब्जियों को अपने ऑमलेट या सालन में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी सहरी को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत बख्श बना सकती हैं। खाने के साथ साथ पानी का सही इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सहरी के वक्त एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। इससे आपको सिर्फ कुछ देर के लिए पेट भरा हुआ महसूस होता है और फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। सही तरीका यह है कि आप इफ्तार से लेकर सहरी तक थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें। इस तरह आपका जिस्म हाइड्रेटेड रहेगा। सहरी में भी 1 से 2 ग्लास पानी काफ़ी है। कोशिश करें कि चाय, कॉफ़ी और मीठे मशरूबात से परहेज करें, क्योंकि ये आपके जिस्म से पानी कम करते हैं और प्यास बढ़ाते हैं। अब जरा इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं जिनसे आपको सहरी में परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तली हुई चीज़ें जैसे पराठे, समोसे या पकोड़े। ये खाने में तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ये आपको दिन भर सुस्त और प्यासा महसूस करवाते हैं।
इनमें ग़िज़ाइयत कम और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाएं। अचार, पापड़ और प्रोसेस फूड्स में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके जिस्म में प्यास की शिद्दत को बढ़ा देती है। इसलिए कोशिश करें कि सहरी में सादा और हल्का फुल्का खाना खाएं। अगर आपके पास सुबह ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो मेरे पास आपके लिए एक 5 मिनट की ज़बरदस्त सहरी आइडिया है। एक स्मूदी बनाएं। ब्लेंडर में 1 कप दही, 1 केला, 2 से 3 खजूरें और मुट्ठी भर बादाम या अखरोट डालें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें और आपकी मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर सहरी तैयार है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और अच्छी कैलोरी सब कुछ मौजूद है, जो आपको दिन भर चुस्त रखेगा। तो इस रमज़ान सहरी को छोड़ने के बजाय इससे एक सेहतमंद आदत बनाएं। याद रखें, सही सहरी ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत रखती है, बल्कि आपको इबादत पर तवज्जो मरकूज करने में भी मदद देती है। प्रूवियों के साथ अपनी आवाज़ को पहचानें।